So hello and welcome back to the part 2 of the lesson structure of atom class 9 chemistry. ठीक है? So once again we will recap that what the things we have studied in the part 1 of the structure of atom. ठीक है? So in the part 1 we have studied about the matter. कि what are matter? Matter are anything that have mass and occupy some space. Then we have gone through the atomic particles. ठीक है? Then we have gone through the discovery, who led the whole discoveries. Then we have got through that from where the idea of atom came, that they are divisible. We have got to know the idea by the static electricity and the attraction of comb and a piece of paper. After that we have got to know about the cathode ray experiment in a very well and proper way. ठीक है? After that we have done the cathode ray experiment that you can go and watch in the part 1. Okay? Now in the part 2 we are going to study about the main important thing about the discovery of the proton. ठीक है? Discovery of the proton we have to study in a very proper and very systematic way. So as the discovery of electron was done from, I have told you, with the n cap negative, with the cathode cathode, and that will be the anode and that will be the positive, from where we have got to know an idea. ठीक है? Then that time what happened, from the negative cathode the rays gone to the positive anode. ठीक है? In the discovery of electron. So from there the idea came in the Goldstein mind कि अगर बच्चा नेगेटिव से पॉजिटिव के पास जा रहा है तो पॉजिटिव अगर नेगेटिव के पास जाएगा, so there will be the some discovery, there will be the some new thing that will be discovered. So keeping that in mind, ठीक है, what he have taken, he have similarly taken a discharge tube like this, as you can see in the diagram. There is a discharge tube, very well it is given. After that same thing he have given it a vacuum pump. He have given it a vacuum pump, and beta why they have given a vacuum pump to regulate the pressure. Okay, then what we are having a high voltage generator. What we are having a high voltage generator to give the connection to the both the terminals. We are having both terminal, we are having anode also, and we are having a cathode. but beta what is to be remember, this time जो हमने कैथोड लिया उसको हमने लिया परफोरेटेड. अब परफोरेटेड मतलब क्या होता है सर? द मीनिंग ऑफ परफोरेटेड दैट देयर आर होल्स, देयर आर स्मॉल पोर्स आर देयर, या होल हम कह सकते हैं. देयर आर स्मॉल पोर्स एंड होल्स आर देयर इन दैट पर्टिकुलर कैथोड. ठीक है? बिकॉज एंड ये सेटअप हमने बना लिया, वी हैव डन दिस पर्टिकुलर सेटअप. ओके, आफ्टर दैट हमने क्या किया, एयर एट लो प्रेशर, सेम थिंग, एयर हमने क्या रखा, लो प्रेशर पे रखा, वोल्टेज क्या रखा, हाई रखा. दिस टाइम व्हेन द वैक्यूम पंप हैव स्टार्टेड, द हीटर हैव स्टार्टेड द इलेक्ट्रिसिटी, व्हाट हैपेंस, द रे हैज स्टार्टेड टू कम फ्रॉम द एनोड टुवर्ड्स द कैथोड. अब बेटा इसके पास पॉजिटिव है तो पॉजिटिव नेगेटिव के पास ही जाएगा ना, अपोजिट चार्ज के पास ही जाएगा. अगर दोनों के पास सेम होता, इसके पास पॉजिटिव था, इसके पास भी पॉजिटिव ही होता, तो ये इसके तरफ थोड़ी जाता, ये इसके तरफ नहीं जाता, इसके तरफ ना जा करके वो रेडिएट ही नहीं करता, वो इमर्ज ही नहीं करता. लेकिन अपोजिट चार्जेस हैं, इसीलिए एनोड से कैथोड की तरफ जा रहा है. ठीक है? एंड यहां पे हमने एक केमिकल लगा दिया है जिसका नाम है जिंक सल्फाइड. क्या नाम है? जिंक सल्फाइड. तो जैसे ही ये जो हमारे रेज हैं, ये जो रेज है जो एनोड से इमर्ज करते हैं, जो एनोड से निकलते हैं, जैसे ही ये परफोरेटेड कैथोड को क्रॉस करते हैं, देयर इज ए रेड ग्लो, लाल फ्लोरेंस, लाल रेड ग्लो निकलता है. एंड दैट पर्टिकुलर ग्लो is to be called as the anode ray, और इन्हें हम कैनाल रेज के नाम से भी जानते हैं क्योंकि they have crossed the perforated or the small pores of the cathode, and that later to be known as the protons. बच्चा ठीक है? So this is how the proton discovery was being performed by the
साइंटिस्ट, ठीक है। और एक चीज और जानो, द प्रोटॉन इज सिंबलाइज्ड बाय द P+, ठीक है। P+ लिख करके हम प्रोटॉन को सिंबलाइज करते हैं, ठीक है। चलो इतना क्लियर हो गया होगा, तो फिर हम आगे देखते हैं कि व्हाट इज बीइंग गिवन इन दैट, ठीक है। इन द नेक्स्ट थिंग व्हाट इज बीइंग गिवन, एनोड रे एक्सपेरिमेंट, ठीक है। एनोड रे एक्सपेरिमेंट का कंक्लूजन वी आर हैविंग कि व्हाट आर द कंक्लूजन दैट वी कैन ड्रॉ फ्रॉम हियर, ठीक है। तो द फर्स्ट कंक्लूजन दैट वी कैन ड्रॉ इन एनोड रे एक्सपेरिमेंट, फर्स्ट वन, E. Goldstein in 1886 performed a discharge tube experiment with porous, ठीक है, or we can say hole in local language that you can understand, or the perforated cathode and observe fluorescence behind the perforated cathode in red glow, जैसे हमने अभी एक्सपेरिमेंट में देखा है, ठीक है। Then these rays were coming from the side of anode in straight line opposite to that of cathode. rays कहां से आ रही थी, एनोड से कैथोड की तरफ आ रही थी, पॉजिटिव से नेगेटिव चार्ज की तरफ आ रही थी, ठीक है। So from there it became very clear, ठीक है। Then we will come to the character. The mass of proton will be 1.6 10 to the power minus 27. The charge of proton will be 1.6 into 10 to the power minus 19. Okay, and relative charge, proton is having a positive charge, so we will write as a +1. Electron is having a negative charge, so we will write as a -1. ठीक है। So this is the symbol of proton and this is the symbol of electron. So these are the conclusions of the anode ray experiment. Okay. Now beta, after this, what we have to go through further is about the difference between the cathode ray and the anode ray. कि सर जो कैथोड रे है और एनोड रे है, इसके बीच में डिफरेंस क्या है, बहुत छोटा-छोटा डिफरेंस है, हम देख लेते हैं क्या है। पहला हमारा कैथोड रे का डिफरेंस है, ये इमर्ज होता है कैथोड रे, बट इसी का उल्टा है हमारा एनोड रे। ये कहां से इमर्ज करता है, ये इमर्ज करता है एनोड से, ठीक है। ये नेगेटिव चार्ज होगा, कौन सा नेगेटिव चार्ज होगा, कैथोड रे, और ये हमारा क्या होगा, दिस विल बी पॉजिटिव चार्ज एनोड रे, ठीक है। जस्ट अपोजिट, उल्टा ही चलना है, उल्टा ही है हमारा, ठीक है। देन ये कैथोड से एनोड की तरफ जाती है, मतलब नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाएगा, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाएगा, और ये क्या होगा, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाएगा, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाएगा, सिंपल है। ये भैया जे थॉमसन ने बताया था, ये हमारे गोल्डस्टीन भाई साहब ने बताया था। लेकिन सर अगर ये दोनों बताए होते तो पढ़ना नहीं पड़ता, अरे पढ़ना नहीं पड़ता, बहुत सारी चीजों का डिस्कवरी ही नहीं हुआ होता, ठीक है। चलो, तो ये पर्टिकुलरली डिफरेंस था इनके बारे में जो हमने यहाँ पे देखा, ठीक है। Now moving on, electron versus proton and the points to remember that we have to study with, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन देखो बच्चा, चार्ज क्या होगा, चार्ज होगा इनका नेगेटिव, प्रोटॉन का चार्ज होगा पॉजिटिव, ठीक है। देन वी आर हैविंग ए मास, ठीक है, 1/2000 ऑफ प्रोटॉन, ये मास होता है इलेक्ट्रॉन। डू वी रिमेंबर, इट इज मोस्टली आस्क्ड इन सीबीएसई एग्जाम्स इन फॉर्म ऑफ एमसीक्यूज, so these things are very important for you to learn. Then proton का approx 1 atomic mass unit, AMU, atomic mass unit, ठीक है, इसका होता है। लोकेशन की बात करें, आउटसाइड द न्यूक्लियस, आउटसाइड द न्यूक्लियस कैसे बच्चा, सपोज हमने एक बना लिया, ठीक है, हमने एक एटम ले लिया, इसके अंदर एक छोटे पार्टिकल होते हैं न्यूक्लियस। अब न्यूक्लियस क्या होता है, ये आगे मॉडल्स ऑफ एटम में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है, मॉडल्स ऑफ एटम में हम लोग पढ़ेंगे कि हमारा न्यूक्लियस क्या होता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इसमें हमारे पास प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है जो आगे है, और इलेक्ट्रॉन क्या करता है, इलेक्ट्रॉन हमारा बाहर वाले एरियाज में होता है, जो कि हम कह सकते हैं सेल, जो कि ऑर्बिट। लेकिन सर ये सारा चीज आप कहां से बता रहे हैं, पीछे के लेक्चर में तो है नहीं, तो आगे जो टॉपिक्स हैं उसमें हम बताएंगे कि ये सारी चीजें क्यों और कहां और कैसे आए, ठीक है। तो जे थॉमसन एंड गोल्डस्टीन एंड रदरफोर्ड ने भी कुछ कंक्लूजन दिया। नाउ देयर आर सम पॉइंट्स टू रिमेंबर, जो हमें रिमेंबर करना है, व्हाट आर द पॉइंट दैट वी कैन हैव इन आवर माइंड, ठीक है। पहला जो हमारा पॉइंट है वो है इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन इज द लाइटेस्ट पार्टिकल, कैसे पार्टिकल्स हैं, दिस इज द लाइटेस्ट पार्टिकल। सेकंड थिंग, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन हैव ऑलमोस्ट इक्वल मासेस, इनके जो मास होते हैं वो ऑलमोस्ट इक्वल होते हैं। हम कह सकते हैं प्रोटॉन इज इक्वल टू दी न्यूट्रॉन, प्रोटॉन इज इक्वल टू दी न्यूट्रॉन, ठीक है, ऑलमोस्ट इक्वल होते हैं, हियर ऑलमोस्ट इक्वल।
न्यूट्रॉन इज स्लाइटली हैवियर देन प्रोटॉन। न्यूट्रॉन क्या होता है, वो स्लाइटली हैवियर होता है। किससे हैवियर होता है, प्रोटॉन से हैवियर होता है, ठीक है। प्रोटॉन इज अबाउट 1836 टाइम्स हैवियर देन एन इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन क्या होता है, 1836 टाइम हैवियर होता है। किससे हैवियर होता है, इलेक्ट्रॉन से होता है, ठीक है। सो दीज आर द सिंपलर पॉइंट्स दैट वी कैन कंक्लूड फ्रॉम द इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड द डिस्कवरीज एंड द थिंग्स दैट वी हैव टू रिमेंबर। तो आई होप बच्चा ये क्लियर होगा, दिस मस्ट बी क्लियर, क्लियर क्लियर, ठीक है। अब ये क्लियर है, अब इसकी हम आगे देखेंगे। आगे क्या हुआ, ठीक है, कि देयर वेयर द डिस्कवरी के आधार पे बहुत सारे मॉडल्स दिए गए, बहुत सारे मॉडल्स दिए गए, मॉडल ऑफ एटम्स, ठीक है, मॉडल ऑफ एटम दिए गए जो मिस्ट्री केम इन आवर नॉलेज, ठीक है। तो व्हाट वर द मॉडल्स दैट वी हैव टू नो, ठीक है। जॉन डाल्टन, ठीक है, he have given a model, ठीक है। Then 1897 J.J. Thomson have given a model. Then 1911 Rutherford have given a model. 1919 and Bohr have given a model. 1926 even Schrödinger have given a model. So these models what we have to know. Similarly, Schrödinger model, plum pudding model, nuclear model and Bohr means ये तीन हमें पढ़ना है। J.J. Thomson model, रदरफोर्ड मॉडल एंड बूहर मॉडल, ये 9th के सिलेबस में हमें इतना ही मॉडल्स पढ़ना है। बल्कि जॉन डाल्टन मॉडल, ठीक है, और इरविन मॉडल ये हम और क्लासेस में पढ़ेंगे, ठीक है। तो हमें बेसिकली सीबीएसई हमसे क्या पूछता है, ये तीनों पूछता है, इन तीनों के बारे में पूछेगा और ये तीनों भी हम पढ़ेंगे। तो बेसिकली देयर आर 5 टाइप्स ऑफ मॉडल दैट वी आर गिविंग बाय क्वांटम मॉडल, टेक्नरी मॉडल, न्यूक्लियर मॉडल, प्लम पुडिंग मॉडल एंड शॉर्टस्फीयर मॉडल, ठीक है। चलो एक एक करके हम जानते हैं कि ये जो मॉडल है वो होता क्या है या कैसे इन्होंने एटम को अरेंज किया, ठीक है। सबसे पहले मैंने कहा था कि तीन हम पढ़ेंगे, कौन कौन से पढ़ेंगे, थॉमसन के मॉडल को पढ़ेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट हमारे पास थॉमसन जी का ही मॉडल आया है, थॉमसन एटॉमिक मॉडल, आल्सो नोन एज वाटरमेलन मॉडल या आल्सो नोन एज प्लम पुडिंग मॉडल। क्या कहलाता है बेटा, वाटरमेलन मॉडल या आल्सो नोन एज प्लम पुडिंग मॉडल, ठीक है। अब इसमें होता क्या है, इन्होंने क्या किया, इन्होंने एटम को एक तरबूज से कंपेयर किया, इन्होंने एटम को एक वाटरमेलन से कंपेयर किया और उससे कंपेयर करने के बाद बोला कि ये जो आपका रेड एरिया है, ये जो आपका रेड एरिया होता है ये पॉजिटिव चार्ज है। ये क्या है मुन्ना, उन्होंने कहा कि भैया ये पॉजिटिव चार्ज है। कैसा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। और उस रेड एरिया में, उस तरबूज में, उस वाटरमेलन में जो सीड्स हैं वो हमारी क्या है, वो हमारी इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो हमारी इलेक्ट्रॉन्स हैं जो उसके बीच में, इसके बीच में सीड्स के फॉर्म में ऑक्सीडेट करती है या फिर रहती है, ठीक है। और भी इन्होंने एक प्लम पुडिंग मॉडल बताया। प्लम पुडिंग मतलब हम कह सकते हैं बेसिकली एक केक होता है, बेकरी शॉप्स पे अवेलेबल होता है। तो प्लम पुडिंग में इन्होंने बताया कि जो प्लम पुडिंग है, जो ये बेसिकली इसका बेस है, ये हमारा क्या है, ये पॉजिटिव चार्ज है। ये हमारा क्या है बेटा, ये पॉजिटिव चार्ज है। और उसके ऊपर ये जो केक्स हमारे रखे हुए हैं, दीज केक्स आर देयर, ये जो हमारे केक्स हैं ये हमारे इलेक्ट्रॉन्स हैं जो उसके चारों तरफ फैले हुए हैं, ऐसे स्कैटर्ड रूप में हैं, ठीक है। तो ये आइडिया बेसिकली इन्होंने वाटरमेलन और प्लम पुडिंग के मॉडल से दिया, ठीक है। देन व्हाट हैपेंस, सी थॉमसन मॉडल, ठीक है। इन्होंने बताया कि जो रेड कलर एरिया है ये पूरा आपका पॉजिटिव चार्ज है, इसके बीच में जो सीड है वो हमारा इलेक्ट्रॉन्स है। मींस ये जो रेड एरिया है ये पूरा हमारा पॉजिटिव चार्ज है और बीच बीच में जो सीड है वो इलेक्ट्रॉन के मॉडल में रखे गए हैं, ठीक है। अब देखो इसमें होता क्या है, इसमें आगे हुआ क्या, इसमें चीजें बताई क्या गई कि थॉमसन मॉडल में तो कुछ फिगर दिया गया। पहला फिगर हमारे पास क्या आ जाएगा, एटम कंसिस्ट ऑफ पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर एंड इलेक्ट्रॉन आर एम्बेडेड ऑन, ठीक है। ये पूरा क्या होता है, ये पूरा पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर कंटेन करता है और जो हमारे जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है, वो इसमें ऐसे छोटे छोटे हम कह सकते हैं छोटे छोटे पार्टिकल्स में करके एम्बेडेड होते हैं। क्या होते हैं, दे आर एम्बेडेड, ठीक है, उसमें एम्बेडेड होते हैं, ठीक है, हम कह सकते हैं उसमें होते हैं। Then what is it? He said the positive and the negative charges are equal in magnitude, ठीक है। पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज, देखो भैया क्या है, बोला गया है कि पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज, ठीक है। तो पॉजिटिव चार्ज इज इक्वल टू हम मान लेते हैं नेगेटिव चार्ज,
ठीक है। अब मान लो किसी के पास -3 पॉजिटिव चार्ज था, +3 और -3 नेगेटिव चार्ज था, तो क्या होगा, प्लस एंड माइनस कट जाएगा, तो इक्वली इसका आंसर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। इससे क्या हुआ कि जो एटम है वो ओवरऑल क्या है, ओवरऑल होल न्यूट्रल है, ओवरऑल होल क्या है, न्यूट्रल है। ये कंक्लूजन निकल के आया। तो इन्होंने कहा कि हेंस द एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल एज ए होल, ठीक है, जो कि हमने जाना कि पॉजिटिव नेगेटिव अगर प्रोटॉन इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन, तो एटम तो इलेक्ट्रिकली क्या हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा। दस ये जो मॉडल था could not explain the result of experiment carried out by the other scientists, ठीक है। तो other scientists they became very disappointed, they did not explain the further things about the atom, so that's why this became into a another model, या इसको हम ज्यादा पर्सपेक्टिव नहीं देते हैं, ये फेल हो गया इस चीज को डिस्क्राइब करने में, ठीक है। तो this is about the we can see Thomson atomic model, ठीक है। Now we will come the another one, that is about the Rutherford model of atom, Rutherford model of atom। देखो जो जे थॉमसन था उसका स्टूडेंट था रदरफोर्ड वाज द स्टूडेंट ऑफ जे थॉमसन, ठीक है। सो उसने क्या किया, उसने अल्फा पार्टिकल्स, क्या किया बेटा, अल्फा पार्टिकल, अभी बताऊंगा अल्फा पार्टिकल्स क्या होता है, ठीक है, अभी बताने वाला हूं, पहले समझो क्या है अल्फा पार्टिकल्स स्कैटरिंग या गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट, इसको हमें बताया, ठीक है, कि अल्फा पार्टिकल क्या होता है या फिर गोल्ड फॉइल स्कैटरिंग चीजें क्या होती है, ठीक है। तो सबसे पहले उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक लिया बॉक्स और उसके अंदर उन्होंने रख दिया अल्फा पार्टिकल्स को, किसको रख दिया बेटा, अल्फा पार्टिकल्स को रख दिया, ठीक है। देन ही हैव टेकन ए स्क्रीन, देन ही हैव टेकन अ राउंड स्क्रीन और उसके अंदर एक गोल्ड फॉइल रख दिया, क्या रख दिया, गोल्ड फॉइल रख दिया। गोल्ड फॉइल एल्युमिनियम फॉइल देखा है आपने, उसी तरह गोल्ड का एक बहुत ही हल्का सा शीट, गोल्ड फॉइल हम किसे कह सकते हैं, उसको उन्होंने रख दिया। और जैसे ही ये अल्फा पार्टिकल जाकर के क्या करती है, गोल्ड फॉइल में स्ट्राइक करती है, जैसे ही जाकर के उस पर लगती है तो इसका कुछ अलग ही रिजल्ट निकलता है, इसका कुछ अलग ही रिजल्ट निकलता है। जो रदरफोर्ड जो कि जे थॉमसन के स्टूडेंट थे उन्होंने ये कल्पना भी नहीं की थी, ठीक है। क्या होता है, कुछ मैक्सिमम पास हो जाती है, मैक्सिमम क्या हो जाती है, मैक्सिमम जो है वो अल्फा पार्टिकल वो पास हो जाती है बच्चा, ठीक है। लेकिन एक या दो क्या होती है, स्ट्राइक करके वापस उसी डायरेक्शन में गई, स्ट्राइक की वापस केम बैक, गई स्ट्राइक की वापस की, गॉन स्ट्राइक वापस गई, स्ट्राइक वापस केम बैक। तो मैक्सिमम क्या हो जाती है, जाती है स्ट्राइक करके, आगे हम देखेंगे कि हुआ क्या, ठीक है, व्हाट हैपेंड इन दिस, ठीक है। देन बेटा मैंने बताया था कि अल्फा पार्टिकल्स क्या होता है। देखो अल्फा पार्टिकल असल में हीलियम पे 2+ का चार्ज इस पे होता है एंड इसका चार्ज होता है 4u। मास जो है हम कह सकते हैं द मास विल बी द 4u एंड हीलियम पे He पे 2+ का चार्ज होगा, दैट विल बी नोन एज द अल्फा पार्टिकल, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, इन्होंने यूज किया वेरी थिन पार्टिकल्स, ठीक है, ऑफ गोल्ड फॉइल, देन अल्फा पार्टिकल का यूज किया, क्या यूज किया, अल्फा पार्टिकल्स। नाउ क्वेश्चन ये आता है कि सर अल्फा पार्टिकल्स क्या होता है। अल्फा पार्टिकल की बात करें तो हीलियम आयंस व्हिच आर डबल चार्ज, ऐसे आयन क्या होंगे, डबल चार्ज होते हैं बेटा। देन मास ऑफ 4u एंड पॉसेस हाई एनर्जी व्हेन मूविंग, पॉसेस हाई एनर्जी व्हेन मूविंग, ठीक है। सो दीज आर द थिंग्स दैट वी यूज, ठीक है। अब रदरफोर्ड मॉडल में देखो यहाँ पे आपको समझने की बहुत जरूरी है, क्या समझना है, बहुत ध्यान से समझना, ठीक है। अल्फा पार्टिकल ने स्कैटर किया, कुछ अल्फा पार्टिकल्स क्या हो गई, स्ट्राइक करके वापस केम बैक, एक आध आ गई, लेकिन मोस्टली क्या हो गई, मोस्टली पास हो गई वहां से बेटा, क्या हो गई, पास हो गई। द सेम थिंग हैपेंड फ्रॉम हियर आल्सो, ठीक है, मोस्टली पास कर गई, बट कुछ क्या हो गई, इसमें स्ट्राइक करके डाइवेट कर गई, स्ट्राइक करके डाइवेट कर गई, ठीक है। अब यहां से वो खुद ही शॉक थे क्योंकि उन्होंने ऐसा ऑब्जर्व नहीं किया था, उन्होंने ऐसा सोचा नहीं था कि ऐसा होगा, बट दिस हैज हैपेंड, ठीक है, दिस हैज हैपेंड, ठीक है। So when this has happened, what he thought, what he expected and what he observed, ठीक है। तो इसमें देखो उन्होंने सोचा था कि क्या होगा, उन्होंने जैसे कि पिछला मॉडल हमारा था जे थॉमसन का, कि ये पूरा हमारा एरिया कैसा होता है, ध्यान में रखना, ये पॉजिटिव चार्ज होता है, उसके बीच बीच में क्या होता है, हमारा नेगेटिव चार्ज एम्बेडेड होता है, यही तो हमने पढ़ा है अभी तक।
लेकिन उन्होंने ऑब्जर्व क्या किया, उन्होंने ऑब्जर्व किया कि अगर पॉजिटिव चार्ज तो है लेकिन बीच में कुछ ऐसा है बेटा, बीच में क्या है, इसके बीच में कुछ ऐसा है, ऐसा न्यूक्लियस है, इसके बीच में कुछ है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द एरियाज क्या हो जा रहा है, जो चार्ज है वो पास हो जा रहा है, लेकिन बीच में क्या हो रहा है, कुछ स्ट्राइक करके वापस चला आ रहा है, दे आर स्ट्राइकिंग एंड कमिंग बैक, दे आर स्ट्राइकिंग एंड कमिंग बैक, या इससे स्ट्राइक करके डिफ्लेक्ट कर जा रहा है, इससे स्ट्राइक करके डिफ्लेक्ट हो जा रहा है। So there is something in the center, ठीक है, जिसका चार्ज कैसा है, जिसका सेम चार्ज है, क्योंकि अगर अपोजिट चार्ज होता, अगर इसका भी पॉजिटिव या नेगेटिव होता तो पॉजिटिव अगर है तभी तो रिपल कर रहा है ना, लेकिन अगर सेम अपोजिट चार्ज होता तो आपस में क्या अट्रैक्ट कर लेता, लेकिन सेम चार्ज है, इन लोग का चार्ज कैसा है, दे आर हैविंग द सेम चार्जेस, ठीक है। So this is how he got very much shocked and from here the theory became very much changed. उन्होंने क्या सोचा था कि भाई पॉजिटिव चार्ज तो पूरा है, बीच में नेगेटिव चार्ज है, लेकिन कुछ ऐसा उन्हें मिला, न्यूक्लियस उन्हें ऐसा मिला कि उसके अंदर कुछ ऐसा चार्ज है जो क्या कर रहा है, जो उसको डाइवर्ट कर रहा है, जो उसको रिफ्लेक्ट कर रहा है, ठीक है। देन फ्रॉम देयर रदरफोर्ड ने कुछ चीजें और हमें बताई, व्हाट आर दे, ठीक है। ही टोल्ड अस कि मोस्ट ऑफ द स्पेस इनसाइड द एटम इज एम्प्टी because most of the alpha particle pass through the gold foil without getting deflected, ठीक है, most maximum of them passed without getting, मतलब 98% of them passed, ठीक है। then very few particles, कैसे particles बेटा, very few particles were deflected from their path, ठीक है, बहुत कम अपने रास्ते से डिफ्लेक्ट हो गए थे, indicating that positive charge of atom occupies very little space, ये इंडिकेट कर रहा है कि जो पॉजिटिव चार्ज ऑफ एटम है वो बहुत ही कम स्पेस को ऑक्युपाई करता है। A very small fraction of alpha particle were deflected by 180 degree, indicating that the positive charge and the mass of the gold atom were concentrated in a very small volume within the atom। क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि छोटा फ्रैक्शन अल्फा पार्टिकल का डिफ्लेक्ट हो गया था बाई 180 डिग्री, जो कि इंडिकेट करता है कि जो पॉजिटिव चार्ज था और जो मास ऑफ गोल्ड एटम था एक छोटे से वैल्यूम में एक एटम के अंदर कंसंट्रेट करके रखे गए थे, लाइक द न्यूक्लियस दैट वी कैन से। तो इतनी सारी चीजें वी हैव गॉट टू नो फ्रॉम देयर, ठीक है। सो दिस वाज द कंक्लूजन दैट रदरफोर्ड हैड मेड, और जैसा उन्होंने सोचा था वहां से बच्चा उन्हें वैसा रिजल्ट नहीं मिला। और कुछ चीजों का यहाँ पे और बताया गया कि अगर कोई चीज बीच में नहीं होता जो उसको स्ट्राइक कर रहा है सेम चार्ज का, तो वो तो डिफ्लेक्ट नहीं करता। अगर एक ही लौट के आ रहा, बार बार उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, बार बार उन्होंने किया, बार बार यही आउटकम आया, ठीक है। सो फ्रॉम देयर ही हैड गिवन वन मॉडल, इन्होंने कहा कि एटम इज न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज पॉजिटिवली चार्ज। न्यूक्लियस ऑफ एन एटम क्या होगा बेटा, ये पॉजिटिवली चार्ज होगा, ठीक है। न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज वेरी डेंस एंड हार्ड, एटम क्या होगा, वेरी डेंस होगा और वेरी हार्ड होगा। न्यूक्लियस ऑफ द वेरी स्मॉल एज कंपेयर्ड टू द साइज ऑफ द एटम एज होल एटम, द रेडियस ऑफ द न्यूक्लियस इज अबाउट 10 to the 5 टाइम्स लेस देन द रेडियस ऑफ द एटम, ठीक है। रेडियस के 10 to the power 10 टाइम्स से लेस होगा न्यूक्लियस रेडियस ऑफ द न्यूक्लियस एटम से, ठीक है। सो दीज कंक्लूजन ही गॉट मेड वन बाई वन, ठीक है। बट इसमें भी कुछ ड्रॉबैक्स आती हैं, इसमें भी कुछ चीजें आती हैं जो बाद में एक और साइंटिस्ट हैं वो बताते हैं हमें, जिनका नाम है बोहर। क्या नाम है बेटा, बोहर मॉडल ऑफ एटम, ठीक है। उसमें हम पढ़ते हैं इसको कि क्या चीजें आती हैं। तो पहले हमें देखेंगे क्या, इन्होंने बताया देयर इज ए पॉजिटिवली चार्ज इन द सेंटर ऑफ एन एटम, ठीक है। सेंटर ऑफ द एटम कैसे चार्ज होंगे, पॉजिटिवली चार्ज एटम होंगे, कॉल्ड न्यूक्लियस, ठीक है। नियरली ऑल द मास ऑफ एन एटम रिसाइड इन द न्यूक्लियस, ठीक है। बोल रहे हैं सारा मास ऑफ एटम कहां होता है, इस जो न्यूक्लियस है इसमें रिसाइड करता है, ठीक है। देन बच्चा द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन सर्कुलर पाथ, ठीक है। बोल रहे हैं कि जो इलेक्ट्रॉन है वो एक सर्कुलर पाथ में इस न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करता है, ठीक है।
द साइज ऑफ द न्यूक्लियस इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू दैट ऑफ एटम। अभी हमने पढ़ा, ठीक है, न्यूक्लियस का 10 टू द पावर 5 टाइम्स क्या होता है, स्मॉलर होता है। लेकिन जो स्टेबिलिटी थी, जो स्टेबलनेस थी वो आ गई इसमें ड्रॉबैक। दिस वाज द ड्रॉबैक दैट इट कुड नॉट एक्सप्लेन, ठीक है। अब ये जो स्टेबिलिटी ऑफ एटम थी, इसको बहुत समय तक नियर अबाउट 20 to 30 इयर्स बहुत सारे साइंटिस्ट इस स्टेबलनेस को पास नहीं कर पाए। बाद में हमारे बोहर भाई साहब आते हैं और उस स्टेबलनेस को दूर करते हैं, ठीक है। चलो अब कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं यहाँ पे। पहला क्वेश्चन ये है कि अकॉर्डिंग टू जे.जे. थॉमसन एन एटम कंसिस्ट ऑफ, क्या करता है बेटा, एम्प्टी स्पेस, नहीं, न्यूक्लियस कंटेनिंग प्रोटॉन न्यूट्रॉन, नहीं, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग अराउंड द एटम, नहीं, पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर विद इलेक्ट्रॉन, ये सही है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू जे.जे. थॉमसन मॉडल एन एटम कंसिस्ट ऑफ पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर विद इलेक्ट्रॉन इमीडिएट एनर्जी, जे.जे. थॉमसन वाला, ठीक है। ऑलरेडी मैंने आंसर दे दिया है, ठीक है। यूनिट जस्ट रिवाइज। इन थॉमसन एटॉमिक मॉडल द पॉजिटिव चार्ज क्या था, थॉमसन एटॉमिक मॉडल में पॉजिटिव चार्ज एब्सेंट इन एटम, नहीं, प्रेजेंट ओनली इन वन इलेक्ट्रॉन, नहीं, डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली थ्रू द एटम, हाँ, एटम में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट था वो रेड कलर वाला पूरा, ठीक है। कंसंट्रेटेड इन द सेंटर, नहीं, सेंटर में नहीं था, सीड जो है अलग अलग नेगेटिव चार्ज में था, तो पॉजिटिव चार्ज हम कहेंगे पूरा रेड कलर वाला हमारा पॉजिटिव चार्ज था। फिर कह रहा है व्हिच स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू फॉर जे.जे. थॉमसन मॉडल, कौन सा स्टेटमेंट जे.जे. थॉमसन मॉडल के लिए ट्रू नहीं है। तो एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, नेगेटिव एंड पॉजिटिव से सही है भैया, नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्जेस बैलेंस इस तरह सही है, ट्रू है। इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस, ये होगा फॉल्स, पॉजिटिव चार्ज सेपरेटेड थ्रू द एटम, ठीक है, ये ट्रू हो जाएगा। तो तीसरा वाला जो है वो जे.जे. थॉमसन मॉडल के लिए नहीं ट्रू है। क्या नहीं ट्रू है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करते हैं। देन हम जाएंगे अगले पे, रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट इन्वॉल्व द स्कैटरिंग ऑफ, रदरफोर्ड का जो एक्सपेरिमेंट है वो किसका एक्सपेरिमेंट, किस चीज के बारे में हमें बताता है। रदरफोर्ड देखो बेटा, अल्फा पार्टिकल मैंने बताया, हीलियम पे 2 का चार्ज होगा, क्या होगा, सिंपल है, गामा नहीं है, अल्फा ही बताया है, तो देख के ही बता लोगे कि सर अल्फा के बारे में बता रहा था, ठीक है, ज्यादा कुछ बताने की जरूरत इसमें नहीं है। मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल पास थ्रू द गोल्ड फॉइल because atom has a dense nucleus, atom has mostly empty space, एटम के पास क्या था, empty, इलेक्ट्रॉन आर वेरी हैवी, नहीं, पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्म, नहीं, एटम्स हैव ए empty space, ठीक है। then in रदरफोर्ड मॉडल द न्यूक्लियस इज, क्या होगा बेटा, स्मॉल होगा, नहीं होगा, न्यूट्रल होगा, नहीं होगा, लार्ज होगा, नहीं होगा, स्मॉल एंड पॉजिटिवली चार्ज, स्मॉल एंड पॉजिटिवली चार्ज होगा, ठीक है। then the next one, रदरफोर्ड मॉडल could not explain, क्या अभी हमने जस्ट पढ़ा है, the stability of the atom, रदरफोर्ड का जो मॉडल था वो हमारे एटम की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था, ठीक है। then what happens, ठीक है, जब लोग पूछते हैं रदरफोर्ड से कि भैया स्टेबिलिटी का क्या हुआ तो मुझे नहीं पता, मुझसे मत पूछो, मुझे नहीं पता है, ठीक है। तो बेचारा उसका कंडीशन ऐसे था, ठीक है, लाइक स्टेबिलिटी ऑफ द एटम। देन मैंने क्या बताया, कुछ 10 से 20 साल तक वो नहीं एक्सप्लेन हो पाया था। देन बोहर मॉडल ऑफ एटम, बोहर की लाइक, इसका जवाब मैं दूंगा। बोहर ने कहा कि देखो ऐसा है कि कोई नहीं बता पाएगा, तो आई एम द पर्सन हु विल गिव द आंसर ऑफ दिस, ठीक है। देन व्हाट हैपेंस, बोहर मॉडल ऑफ एटम 1930 में ये भाई साहब एक मॉडल लेकर के आते हैं जो कि वेरी इंटरेस्टिंग है बेटा, इट इज वेरी इंटरेस्टिंग टू स्टडी अबाउट दिस मॉडल, ठीक है। अब मॉडल क्या है हम जानेंगे, पोस्टुलेट्स ऑफ बोहर मॉडल, ठीक है। कब लेके आए थे बेटा, याद रखना 1930 में एमसीक्यूज में आता है। He told only certain special orbits known as decentric orbit of electron are allowed inside the atom। चलो ठीक है, अभी इसका प्रूफ देखते हैं। While revolving in decentric orbit, the electrons do not radiate in, इन्होंने बोला जो इलेक्ट्रॉन है वो एक ऑर्बिट में रिवॉल्व करती है, एक सेल में रिवॉल्व करती है, एक अपने सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करती है, और जब रिवॉल्व करती है तो जरूरी नहीं है ये कि वो कोई एनर्जी को निकाले, कोई एनर्जी को रेडिएट करे। The electrons revolve rapidly round the nucleus in a fixed circular path that are known as energy level या सेल, जिन्हें हम क्या कह सकते हैं, जिन्हें हम एनर्जी लेवल कह सकते हैं, जिन्हें हम सेल कह सकते हैं, ठीक है। These cell nearest to the nucleus have minimum energy, ठीक है, जो न्यूक्लियस के नियरेस्ट है उस
उसके पास मिनिमम एनर्जी है सेल का, और जो फार्टेस्ट है उसके पास मैक्सिमम एनर्जी है। ठीक है, तो ऐसे हुआ कि न्यूक्लियस के जो मिनिमम है, न्यूक्लियस के जो नजदीक है वो क्या है, उसके पास सबसे ज्यादा एनर्जी है, नीरज हैविंग मिनिमम एनर्जी। ठीक है, सॉरी, न्यूक्लियस के नजदीक है, इसके पास क्या है, मिनिमम एनर्जी है, दूर है तो ज्यादा एनर्जी है। ठीक है, ये चीजें इन्होंने अपने पोस्टुलेट्स में कहा। ठीक है, चलो आगे देखते हैं और चीजें क्या कहते हैं। ठीक है, अब कुछ ऐसा स्ट्रक्चर इन्होंने इसके बारे में बताया। ठीक है, चलो जानते हैं क्या बताया इन्होंने। सबसे पहले कहा कि सेंटर में हमारे है न्यूक्लियस, सेंटर में क्या है, देयर इज ए न्यूक्लियस, और उसके चारों तरफ, उसके चारों तरफ ऑर्बिट में, ये हमारा ऑर्बिट है, एक ऑर्बिट, ये हो जाएगा पहला, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा, ये ऑर्बिट है हमारे KLM। ठीक है, N, ठीक है, these will be the orbits, या इन्होंने इसको एनर्जी लेवल्स कहा, इन्होंने इसको वो सर्कुलर पाथ कहा जिसमें इलेक्ट्रॉन्स क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स बेटा रिवॉल्व करेगा, क्या करेगा, रिवॉल्व करेगा। तो ये एनर्जी सेल्स या एनर्जी लेवल्स के नाम में इन्होंने बताया, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर उन्होंने दिया, और इलेक्ट्रॉन्स क्या करेगा, इसमें रिवॉल्व करेगा, और जो न्यूक्लियस से जितना नजदीक होगा उसकी एनर्जी लेवल क्या होगी, उतनी कम होगी, और जो जितना दूर होगा उसकी एनर्जी लेवल उतनी ही अधिक होगी। ठीक है, लेवल्स आर रिप्रेजेंटेड टू में KL11 1 2 3 4। ठीक है, दिस आर द थिंग्स इन्होंने दिया एक मॉडल के रूप में। ठीक है, नाउ आगे हम देखते हैं, आगे हम देखेंगे KLMN। ठीक है, पॉजिटिव सेल है, पॉजिटिव ये न्यूक्लियस है हमारा, उतनी कम होगी KLMN। ठीक है, सबसे नजदीक वाले की एनर्जी क्या होगी, लो होगी, और सबसे अधिक वाले की एनर्जी क्या होगी बेटा, हाई होगी। ठीक है, ये चीजें हमें मालूम चल गया। नाउ क्वेश्चन टाइम, क्वेश्चन टाइम हमारे पास आता है। क्वेश्चन टाइम क्या है, इसके जो बोहर मॉडल with 3 cells, so simply you can make KLMN with the nucleus in the center and orbits. ठीक है, no problem in that. Then according to Bohr model, electron revolve around the nucleus. क्या करते हैं, न्यूक्लियस में रिवॉल्व करते हैं इन ए सर्कुलर ऑर्बिट। ठीक है, इन इपिथेलिकल नहीं, रैंडमली नहीं, इनसाइड द न्यूक्लियस नहीं, कहां करते हैं, इन ए सर्कुलर ऑर्बिट विद फिक्स्ड एनर्जी, सर्कुलर ऑर्बिट में एक फिक्स्ड एनर्जी के साथ रिवॉल्व करते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन ये आती है कि सर हाउ आर दे डिस्ट्रीब्यूटेड। अब उन्होंने इलेक्ट्रॉन को डिस्ट्रीब्यूट कैसे किया, इलेक्ट्रॉन को डिस्ट्रीब्यूट करने का भी तो एक ट्रिक होना चाहिए, एक तरीका होना चाहिए, देयर मस्ट बी सम ट्रिक, देयर मस्ट बी सम वेज। ठीक है, तो इसको तो हमें पढ़ना ये था कि कैसे इन्होंने डिस्ट्रीब्यूट किया इलेक्ट्रॉन्स को इन द डिफरेंट ऑर्बिट। ठीक है, सबसे पहले देखो इन्होंने बोहर-बुरी मेथड का इस्तेमाल किया। व्हाट ही हैव डन, ही हैव फॉलोड द बोहर-बुरी प्रपोज द रूल्स फॉर द डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन एन एटम ऑर्बिट। ठीक है, इन्होंने 2n स्क्वायर रूल को फॉलो किया, ही फॉलो द 2n स्क्वायर। अब सर ये 2n स्क्वायर रूल है क्या, 2n स्क्वायर देखो जैसे हमारे पास k सेल, तो k कौन सा, पहला सेल है, n के जगह पे नंबर ऑफ सेल्स, कौन सा नंबर ऑफ सेल है हमारे पास, कौन सा ऑर्बिट है, पहला था तो 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, तो 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरा हमने 2 रखा तो 2 का होगा 4, 4 into 2 हो गया 8, 3 का होगा 3 into 3 9, 9 into 18, 4 का होगा 16, 16 into 32 इलेक्ट्रॉन। तो ऐसे इन्होंने क्या दिया, 2, 8, 18 और 32। ठीक है, 2, 8, 18 और 32 इलेक्ट्रॉन्स हमें यहाँ पे मिले। ठीक है, अब देखो यहां से क्या, जो सबसे लास्ट वाला है उसके पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, और जो सबसे नजदीक वाला है उसके पास सबसे कम इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो यही बता रहा था कि जो एनर्जी लेवल सबसे नजदीक वाले की होगी वो लो होगी, और सबसे दूर वाले की होगी वो क्या होगी, वो हमारी होगी हाई। ठीक है, तो 2n स्क्वायर से इन्होंने डिस्ट्रीब्यूट किया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन दी ऑर्बिट्स, ऑर्बिट में इन्होंने इलेक्ट्रॉन्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ठीक है, अब बच्चा हमें क्या देखना है, हमें देखना है कि इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट अकोमोडेटेड इन ए गिवन सेल अनलेस द इनर सेल्स आर फिल्ड, दिस इज द सेल्स आर फिल्ड इन ए स्टेपवाइज मैनर। ठीक है, तो इसी वजह से दे वेयर फिल्ड इन ए स्टेपवाइज मैनर में फिल किए गए। ठीक है, अब क्या बोला, हाउ आर इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूटेड इन डिफरेंट ऑर्बिट्स। ठीक है, द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट कैन बी अकोमोडेटेड इन द आउटर मोस्ट सेल ऑर्बिट इज 8। ठीक है, बाहरी आउटर मोस्ट में 8 ही इलेक्ट्रॉन हो सकते थे, बिकॉज द आउटर मोस्ट सेल ऑफ एटम इज द फर्स्ट सेल और द k cell, then it cannot accommodate
accommodate more than 2, ठीक है। तो more than 2 इलेक्ट्रॉन जो पहला वाला सेल है हमारा वो accommodate नहीं कर सकता है, और इसी वजह से हम कह सकते हैं कि having 8 इलेक्ट्रॉन in the outermost cell एटम को स्टेबल बनाता है। स्टेबिलिटी यहीं से उन्होंने एक्सप्लेन कर दिया कि ऑक्टेट पूरा करना चाहिए, मतलब 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए उसमें, ठीक है। देन देयर आर सम क्वेश्चन। स्मॉलेस्ट ऑर्बिट कौन सा होगा हमारा? सबसे पहले बेटा क्लोजेस्ट टू न्यूक्लियस इज कॉल्ड KLMN। तो K आएगा पहले, K हो जाएगा, ठीक है, कुछ करना ही नहीं इसमें। हाउ मेनी KLM? M में कितना होगा? 18 होगा। 2 8 18 32, ठीक है, 18 होगा, कुछ करना नहीं है, सिंपल सा है बेटा। नाउ हम कह सकते हैं एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर इक्वल होंगे तो एटम क्या होगा? इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हो जाएगा। तो इसमें तो कुछ कहने की बात नहीं है, ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं, ठीक है। अब बात आती है इसको बताने के बाद कि भैया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमारा कैसे होगा? हाउ विल बी द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दैट विल बी कैरीड आउट या दैट विल बी डन। तो अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में क्या होगा? एटॉमिक नंबर ऑफ द एलिमेंट हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, ये सारे जो एटॉमिक नंबर है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ऐसे करके हम उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालेंगे। तो एटॉमिक नंबर का एक कॉलम है एलिमेंट, नंबर ऑफ प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन दोनों हमेशा इक्वल होंगे। अभी हम लोगों ने पढ़ा है, सर आपने बताया है, प्रोटॉन इज इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो ये सर आपने बता दिया। देन KLM हम देखेंगे, ठीक है, और इसी के साथ हम इसकी वैलेंसी को भी देखेंगे मुन्ना। क्या देखेंगे? वैलेंसी को भी देखेंगे, ठीक है। क्योंकि अगर आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 1 2 3 और 4 आता है तो ये क्या हो जाएगा? वो उसी का वैलेंसी हो जाएगा। लेकिन अगर क्या आता है 5 6 7 और 8 प्लस आता है तो उसको हम 8 से माइनस करेंगे, ठीक है। माइनस करने पे जो आएगा वो उसका वैलेंसी होगा। सिंपली यही रूल फॉलो करना, ठीक है। तो चलो देखते हैं। हाइड्रोजन पहला है, हाइड्रोजन का होता है एटॉमिक नंबर 1, ठीक है, नंबर ऑफ प्रोटॉन 1, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 1 हो जाएगा, K में एक ही सेल आएगा तो वैलेंसी उसकी हो जाएगी 1, ठीक है। एटॉमिक नंबर हाइड्रोजन, हीलियम, एटॉमिक नंबर होता है 2, नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे 2, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी हो जाएंगे, दोनों इक्वल होते हैं आपस में, ठीक है। डुप्लेट हो जाएगा भैया 2, सेटिस्फाई हो गया। 2 होना चाहिए, 2 हो भी जाए, 2 रोटी खा सकता है, 2 रोटी होना भी चाहिए। किसमें? K सेल में। K सेल में 2 रोटी हो सकता है, 2 मिल भी गया तो वैलेंसी क्या हो जाएगी? कुछ नहीं करना, जब 2 रोटी खा लिया तो 0 नहीं हो जाएगा, हैं, ठीक है। लिथियम का 3 होता है, 3 and 2 and 1, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 2 and 1, तो हमें मिल गया 1, ठीक है। अब देखो ऐसी तरह एक न्यूक्लियस है, दिस इज द न्यूक्लियस, ये सेल है, क्लोजेस्ट सेल है, एक ही इलेक्ट्रॉन है तो हमने एक ही इलेक्ट्रॉन पढ़ा है। ये न्यूक्लियस है, ये ऑर्बिट है, 2 इलेक्ट्रॉन्स है तो हमने 2 इलेक्ट्रॉन पढ़ा है। ये न्यूक्लियस है हमारे पास, क्या है? ये न्यूक्लियस है तो हमने क्या बढ़ा है भैया? इसमें कुछ भरा है, इसमें हमने भरा है 3, ये 2 इसमें आ गया, एक हमने कर दिया इसमें, क्योंकि ये लास्ट वाले ऑर्बिट में केवल 2 ही हो सकता है, इसमें हम कर सकते हैं 1, 3 ही था, 3 हम कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे हम क्या करेंगे? ऐसे हम 4 का भी निकालेंगे, 5 का भी निकालेंगे, 6 का भी निकालेंगे, ठीक है। ऐसे हम हर का निकालेंगे 4 5 6, ठीक है। बेरिलियम, बोरान, कार्बन, ठीक है। अब मान लो कार्बन का था 6, तो 2 पहले वाले में आ सकता है 2, दूसरे में कितना आ सकता है बेटा? दूसरे में हमारे पास कितना आ सकता है? 2n² के हिसाब से 2 8 आ सकता है, तो हमने 4 लिख दिया, ठीक है। तो पहले में 2, दूसरे में 4, इस तरह हम उसका रिप्रेजेंटेशन भी कर सकते हैं, दैट इज वेरी इजी। लास्ट में मैंने बताया 2 है तो वैलेंसी 2, 3 है तो 2, अब देखो 4 है, 4 तक तो वैलेंसी आ गई सर, 4 तक तो क्लियर है हमारे पास वैलेंसी की, लास्ट में 4 आया तो 4 वैलेंसी, लेकिन अगर 5 आ गया तो 5 का भी वैलेंसी वही है क्या? 5 का भी वैलेंसी, देखो 5 का वैलेंसी वही नहीं लिखा गया है, दिस इज नॉट द सेम। क्या मैंने बताया? क्योंकि हम ये अगर 5 6 7 या 8 आ रहा है तो 8 से हमने 5 को माइनस किया इज इक्वल टू 3 एंड 3 विल बी द वैलेंसी। ये चीजें आपको याद रखने की बहुत जरूरत है इन ऑर्डर टू फाइंड द वैलेंसी, ठीक है। उसी तरह हमने 7 8 9 का फाइंड किया, 8 हमारे पास था, लास्ट में 6, 8 - 6 2 हमारी वैलेंसी हो जाएगी, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को हम डिनोट कर देंगे उसमें ऐसे मेथड, ठीक है। चलो इतना तो क्लियर हो गया होगा, आई होप हो गया क्लियर। क्लियर है? ठीक है, अगर क्लियर है तो ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है।
नियॉन का अब देखो 8 था तो 8 माइनस 8 0 हो जाएगा, तो हमने क्या कर दिया 0 कर दिया, ठीक है। देन हमारे पास क्या था 2 8 1, ठीक है। 11 था 1 आया तो 1 हो जाएगा, ये कैरी ऑन फिर ऐसे हो जाएगा। 12 में 2 है तो 2 ही हो जाएगा आउटर मोस्ट ऑर्बिट में, क्योंकि सर 8 सेटिस्फाई हो गया। 2 m की वैलेंसी क्या है 2 8 16 है, लेकिन 2 है इसके पास, तो 2 है तो 2 ही हो जाएगा, ठीक है। ये मत याद रखना कि सर k वाले के पास 2 था तो हमने 2 ही लिख दिया था, क्योंकि ये इसका k सेल का लिमिट ही 2 है, इसीलिए हमने 2 लिया था। लेकिन m सेल का लिमिट 2 नहीं है, उससे ज्यादा है, ठीक है। चलो, सो दिस वाज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एल्युमिनियम सिलिकॉन, ठीक है, एंड फास्फोरस। सो दिस इज हाउ यू विल रिप्रेजेंट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अप टू 20, ठीक है। कैल्शियम आर्गन, देन वी हैव दिस 286 287 288, like this we will do and we will make the diagrams, ठीक है। चलो, इतना तो क्लियर हो गया होगा। एंड दिस इज फ्रॉम योर सीबीएसई बुक, दिस इज फ्रॉम योर सीबीएसई बुक कि नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन तो सेम होंगे, ये क्या होंगे सेम होंगे, ठीक है। बट नंबर ऑफ जो न्यूट्रॉन है वो हमें निकालना पड़ेगा, तो वो अभी हम देखते हैं कि नंबर ऑफ जो न्यूट्रॉन है वो हम कैसे निकालते हैं, ठीक है। KLMN वैलेंसी, ठीक है। So these things are given, just do a fast recap regarding those things. Now there is a question time which comes to us. What are the question times? If K and L cells of an atom are full, then what will be the total number of electrons? अगर दोनों फुल है, ठीक है, तो K में 2 रहेगा, L में 2 रहेगा, दोनों मिलके हो जाएगा 10 electrons, तो 10 will be the answer. दूसरे में an element has 6 electron in M cell. What is the total number of atomic number? ठीक है, M cell में 6 है, M cell में किसमें है M cell में 6 है, तो इसका मतलब दूसरे वाले में 8 फुल होना चाहिए और पहले वाले में 2 होना चाहिए, तो 8 to 10 है 16, 16 किसका है बेटा सल्फर, ठीक है। ऐसे आप थोड़ा सा माइंड यूज करके लगाएंगे। एटॉमिक नंबर ऑफ एल्युमिनियम इज 13, इट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन विल बी 13 का कितना होगा बेटा 2 और 8, ये तो हो गया 10 और 3 कितना हो जाएगा 13, पहला वाला आपको यहां जाने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द एटम विद द कॉन्फ़िगरेशन 283 क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द एटम 8 to 10 3 13 हमारे पास यहां पे है, 13 हमें मिल गया। द एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट इज 11, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन इट्स सेकंड सेल इज 8, अगर 11 है तो 2 और 8, ठीक है, एंड 1, तो अगर 11 दूसरे वाले में कितना रहेगा 8 रहेगा, 8 विल बी द आंसर। हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकाल देंगे, ठीक है। सो दिस इज हाउ द इलेक्ट्रॉन्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन डिफरेंट, ठीक है, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम बोरॉन कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन नियॉन सोडियम मैग्नीशियम एल्युमिनियम सिलिकॉन फास्फोरस सल्फर उदयन आर्गन, ठीक है। तो ये अलग अलग उसके डिस्ट्रीब्यूशन के ऑर्बिट के सेल्स हैं, जो जिसे हम कहते हैं स्कैटरमेट्रिक एटॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ फर्स्ट 18 एलिमेंट, ठीक है। सो ये हो जाएगा, इट इज वेरी क्लियर। अगेन वी आर हैविंग द फ्लो चार्ट जो मैंने पहले भी दिखाया था आपको, ठीक है। नाउ 2 चीज हम जानेंगे और ये पार्ट 2 हमारा आज यहीं पे फिनिश हो जाएगा। लास्ट वैलेंस सेल क्या होता है और नंबर ऑफ वैलेंसीज क्या होते हैं, ठीक है। हम जानेंगे वैलेंस सेल के बारे में और नंबर ऑफ वैलेंसीज के बारे में, ठीक है। जैसे हमारे पास क्या है हाइड्रोजन, क्या है हाइड्रोजन, तो वैलेंस सेल का मतलब हो गया ऑर्बिट, ठीक है, क्या हो गया ऑर्बिट, तो ऑर्बिट कौन सा है ये है हमारे पास। नंबर ऑफ वैलेंसीज, नंबर ऑफ वैलेंसीज, तो हम क्या लिखेंगे भैया ठीक है। ये याद रखना वैलेंसी मतलब जो मैंने ट्रिक बताया 1 2 3 4 तक सेम, बाकी 5 6 7 8 तक 8 से माइनस कर देंगे। वैलेंसी क्या है हीलियम का, वैलेंसी हमारे पास क्या है K, तो हमने K लिख दिया। नंबर ऑफ वैलेंसीज, वैलेंसीज हमारे पास क्या है वैलेंस सेल आउटर मोस्ट, तो हमने क्या लिखेंगे K लिखेंगे। नंबर ऑफ वैलेंसीज क्या लिखेंगे हम लोग लिखेंगे नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ वैलेंस, देखो वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होगा, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन है एक लिखा, हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन है एक और 2 इलेक्ट्रॉन है 2 लिख दिया। नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है हमारे पास 1 2 3 4, ठीक है, 1 2 यहाँ पे है हमारे पास, तो 1 2 यहाँ पे है और 1 2 3 4, ठीक है, तो हम लिख देंगे 5 हमारे पास कितने हैं नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन हमारे पास 5 है। लास्ट वाले में ये हमारा क्या हो जाएगा L वाले में वैलेंस सेल 1 2 3 4 5, ठीक है। देन हमारे पास क्या होगा लास्ट का, ये रॉन्गली लिखा हुआ है, इसको थोड़ा सा
सही कर लेना, ये L होगा, ये L, ठीक है। और ये लास्ट वाला भी 5 होगा। बैलेंस है हमारे पास लाइन कितने हैं हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 है, ठीक है। तो लास्ट वाले कितने हैं 1 2 3 4 5 6 6 है, इसलिए हमने 6 लिखा हुआ है, ठीक है। देन थोड़ा सा आगे हम लोग बढ़ेंगे, इसमें क्या है बैलेंस सेल, ठीक है। बैलेंस सेल हमारे पास है लास्ट ई है, मतलब L वाला है, L में है। टोटल कितने हैं हमारे पास, काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, और दोनों मिलाकर के 8। तो हमारे पास क्या हो जाएंगे लास्ट में 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। सिमिलरली ये सारे भी परफॉर्म किए गए हैं, दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड इन ए वेरी वेल। अब वैलेंस सेल्स और वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, वैलेंस सेल्स और वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं। वैलेंस सेल मतलब होता है आउटर मोस्ट सेल, वैलेंस इलेक्ट्रॉन मतलब होता है इलेक्ट्रॉन इन दी वैलेंस सेल। तो वैलेंस सेल मतलब क्या, आउटर मोस्ट सेल, सबसे अंतिम वाले सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। वैलेंसी क्या होती है, कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ द एटम, क्या होती है कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ द एटम। जैसे हमने लिया 2n6 का इसका निकाला, ठीक है, सल्फर का 16 का निकाला कि 11 2 8 16 286। तो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू द इलेक्ट्रॉन इज सेम, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है, आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। देन वैलेंसी ऑफ एन एलिमेंट डिपेंड अपॉन द वैलेंस इलेक्ट्रॉन, जो वैलेंसी होती है वो किस पे डिपेंड करती है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे डिपेंड करती है। देन केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एन एटम डिपेंड अपॉन द वैलेंस इलेक्ट्रॉन। सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन मींस सिमिलर केमिकल प्रोपोर्शन, डिफरेंट नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन मींस डिफरेंट केमिकल प्रोपोर्शन, ठीक है। तो हम पार्ट 2 बेटा हम यहाँ भी करेंगे।